Good morning, all of you. Today's topic is nomenclature of alcohols. In a previous lecture, we discussed about the introduction and classification of the alcohol depending upon the number of the OH group, depending upon the hybridization state of the carbon atom to which the OH attached. So, in this case, the nomenclature of alcohols. In this case, there are three systems of the nomenclature. The first is common system or trivial system. Now in this common system, the name of the alcohol, it is derived from the general formula of the alcohol is ROH. In this case, it is a hydrocarbon part and a functional group part. Okay. So first write down the name of this hydrocarbon, means alkyl. Later on the OH, means its a common name. It is obtained by adding the alcohol after the name of the hydrocarbon. Okay. So the common name is alkyl, alcohol. सबसे पहले आपको अल्काइल का नाम लिखना है और उसके बाद आपको ऐड करना है अल्कोहल. सो इट्स नेम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ द अल्काइल. सो इट्स कॉमन नेम इज अल्काइल अल्कोहल. बट इन केस ऑफ द हायर अल्कोहल, ठीक है, द प्रीफिक्सेस लाइक एन, iso, neo, they are used, okay, on the basis of the nature of the carbon. So the prefixes, while writing the name of the higher alkyl, the prefixes like the iso, an or neo, they are used. कुछ एग्जांपल यहां पे अपन ले लेते हैं कि CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CHOH, CH3 CH2CH2CH2OH, CH3CH2OH. Okay. Now the common name of this is, in this case, in case of alkyl, there is a one carbon alkyl, means methyl. So name is methyl alcohol. Now in this case, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ये दो कार्बन वाला है, दो कार्बन वाला अल्काइल है, दो कार्बन वाला अल्काइल मीन्स इथाइल अल्कोहल. ओके. यहां पे जो अल्काइल है ये तीन कार्बन वाला है, बट यहां पे आप देखना है कि प्रोपाइल से आइसोमर तैयार हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ये आइसोमर्स तैयार होने के कारणवश अपने को यहाँ पे देखना होगा कि OH कहाँ अटैच है. नाउ इन दिस केस द OH इट इज अटैच्ड टू द प्राइमरी. सो N, all the carbons they are normally arranged in a sequence. So N propyl alcohol या primary propyl alcohol. Now in this case OH it is attached to secondary, so it is a iso or secondary isopropyl alcohol.
यहाँ 4 कार्बन वाला अल्काइल है, 1 2 3 4, बट दे आर अटैच्ड टू वन अनदर इन अ नॉर्मल वे, सो N ब्यूटाइल alcohol. Now in this case one of the carbon जो है alkyl group, it is attached to the second carbon of the main chain. So this condition is iso. Then iso. कभी भी एक ध्यान देना है कि कॉमन नेम लिखते समय सारे कार्बन को काउंट करना है आपको. कितने हो गए? 1 2 3 4, मीन्स इट इज अ ब्यूटाइल अल्कोहल. इसी का टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी तैयार हो जाएगा. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि in this case the common name of the alcohol is alkyl alcohol. It is obtained by adding the word alcohol after the name of the hydrocarbon, means the alkyl, means its a name, it is derived from the name of the alkyl, later on the alcohol. Now the second system of the nomenclature of alcohol is second system, that is carbinol system. Now in this system ये मिथाइल अल्कोहल है. दिस मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज द कार्बिनॉल. ओके, सो द अदर अल्कोहल्स दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द मिथेनॉल, means methyl alcohol means the carbinol. Okay, now in this case in this carbinol system, the name of the alcohol, they are considered as a derivative of carbinol. Okay, suppose in this case the hydrogen atom of this methyl alcohol, it is replaced by मिथाइल ग्रुप. ये जो कार्बन है ये कार्बिनॉल कार्बन है. ओके, कार्बिनॉल कार्बन. सो अदर अल्कोहल्स, दे आर कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव, यानी बाकी के जो अल्कोहल है वो अपन मिथेनॉल की डेरिवेटिव्स है, मींस कार्बिनॉल की डेरिवेटिव्स है, ये कंसीडर करना है. क्योंकि इस मिथाइल अल्कोहल का, मींस इस कार्बिनॉल का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, कैसे? मिथाइल से. सो इट्स नेम इज मिथाइल कार्बिनॉल. ओके, बिकॉज दिस पोर्शन इट इज अ कार्बिनॉल. करेक्ट. सपोज इन दिस केस now it is a carbinol, but hydrogen atom it is replaced by methyl, another hydrogen also replaced by the methyl. Okay, तब अपन इसको क्या बोलेंगे कि कितने? 2 मिथाइल है, so dimethyl, and this carbon it is a carbinol carbon, so its name is dimethyl carbinol. Okay, समझो ये भी हाइड्रोजन जाता है तो ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल. अनदर इज CH3CH2C OH. Now it is a carbinol. One hydrogen atom of this carbinol carbon, it is replaced by ethyl. So it is a ethyl carbinol. सपोज यहां पे मैंने CH3 लिख दिया तो क्या लिखूंगा फिर? इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल. करेक्ट. मींस इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ द अल्कोहल, दे आर कंसीडर्ड एज
the derivative of the carbinol, correct? Derivatives of the carbinol. So in this case, ethyl carbinol. Okay, so it is the second system of the nomenclature, carbinol system. First is the common or the trivial system, Now the third system of the nomenclature of the alcohol, it is the most common system of the nomenclature, IUPAC system. Now in this IUPAC system there are so many rules to assign the name. Okay, there are so many rules. यह हमने 11th में पढ़े हुए हैं कि किस तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग किस तरह से देना है. ओके, एक बार आपको यहां पे रिवाइज कर देता हूं. बट इन दिस केस एक कुछ फैक्टर लिख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं इससे रिलेटेड कि एंडिंग ई ऑफ द पैरेंट अल्केन, ओके, या अल्कीन या अल्काइन is replaced by the suffix ol. क्या होगा? ol. करेक्ट. क्या लिखा मैंने कि एंडिंग ई ऑफ द पैरेंट अल्केन या अल्कीन या अल्काइन is replaced by the suffix ol. So its IUPAC name is E. It is replaced by the ol, correct? So alkanol, ये alkanol हो जाएगा ol. ठीक है. बट इन केस ऑफ द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मीन्स इन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द एंडिंग ई जो है ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड, करेक्ट, is retained and suffix ol is added. suffix ol जो होगा वो ऐड हो जाएगा and the number of OH groups जो हो गए, OS groups indicated by using prefix like di, tri, etc. ठीक है. समझो एक से ज्यादा OH वहां पे है तो उसको इंडिकेट करेंगे बाय यूजिंग दी प्रेफिक्स डाई, ट्राई, etc. अब तीसरा ये दी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप्स जो है इंडिकेटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय दी इंडिकेटेड बाय कैसे? एप्रोप्रिएट लुकेंट्स. ओके, मीन्स नंबर, जो भी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप होगा इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट लोकेंट्स. इज इट क्लियर? सो द इन IUPAC सिस्टम और IUPAC सिस्टम there are so many international rules है जो डिसाइड किए गए, उसके बेस पे से हमें यहां पे इसका नोमेनक्लेचर करना है. बट मोस्ट कॉमन इसका जो रूल है ये कि
पेरेंट अल्केन जो होता है, जो अपन चेन को सिलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए पेरेंट अल्केन हो गया, उसका एंडिंग में जो ई है मींस एंडिंग ई जो है इसको अपने को रिप्लेस करना है और उसके जगह क्या लिखना है, OL। सो द जनरल IUPAC नेम जो होगा अल्कोहल का वो होगा अल्केनॉल, करेक्ट, अल्केनॉल। बट इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यानी एक से ज्यादा अल्कोहल वहां पे होगा तो इस ई जो है एंडिंग का ई इसको रिटेन करना है और सिंपली प्रेफिक्स OL इसको ऐड कर देना है। पर यहां पे जो नंबर है अल्कोहल के इसको इंडिकेट करना है बाय यूजिंग द प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह वगैरह। एंड इसकी जो पोजीशन होगी ये पोजीशन हम एप्रोप्रिएट लोकेंट्स को लेके मींस नंबर्स को लेके इंडिकेट करेंगे। ओके, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नीतू आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? CH3 CH2 CH CH3 CHOH ठीक है। Now it is a monohydric alcohol because in this molecule there is only one OH is there. So while writing the IUPAC name or the IUPAC name, first select the longest continuous chain, okay, but including one of the carbon carrying the functional group, and in this case functional group is OH. सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5। समझो बाइफर्केशन होता होगा तब अपन ने को देखना है कि भाई कौन सा ब्रांच जो है ये ज्यादा कार्बन वाला है, बट यहाँ पे इक्वल कार्बन का बाइफर्केशन हुआ है मींस यहाँ से सरीका जो ये है डिवाइडेशन हुआ है वो सरीके कार्बन का है, तो आप ये या ये चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल अपना ये बोलता है कि गिव द नंबरिंग फ्रॉम व्हिच एंड व्हिच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप, या इस तरह से नंबरिंग दो ताकि जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं सेकंड रूल, 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट। अब सपोज इक्वल नंबर आता होगा दोनों एंड से, तब अपने को ये देखना है कि वो एंड ब्रांच से नजदीक है क्या। ओके, अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो 1 2 तीसरे इससे ब्रांच है, इधर से भी तीसरे इससे ब्रांच है, ऐसे कंडीशन पे और इसका सब रूल अप्लाई करना है कि जो ब्रांच अल्फाबेटिकली पहले आती होगी उस एंड से अपने को नंबरिंग को देना है। ये सिंपल तरीके अपने को याद रखने के। तो हम यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट। अब यहां पे 7 कार्बन का चेन है, ये इसका पेरेंट अल्केन हो गया। ठीक है, पेरेंट अल्केन मींस पेरेंट अल्केन हो गया हेप्टेन, हेप्टेन, करेक्ट। फिर अपन ने क्या बोला है कि एंडिंग ई ऑफ द पेरेंट अल्केन। ठीक है, अब यहां पे 7 कार्बन है करके मैं वर्ड रूट अप्लाई कर रहा हूं, कौन सा, हेप्ट। सारे कार्बन एक मिक्स से कैसे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए मैं सफिक्स यूज करूंगा कौन सा, an इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, en होता तो डबल बॉन्ड, yn होता तो ट्रिपल बॉन्ड, but in this case all the carbon of the parent chain they are attached to each other by a single bond, so मैं suffix जो लूंगा वो an, correct। now e
replaced by कैसे OL, so its name is हेप्टेनॉल, करेक्ट, हेप्टेनॉल। अब आप एक देखो हेप्टेनॉल, अब यहां पे 7 कार्बन में से OH, ये इस नाम पे से हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द OH, वेदर द OH इट इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन और सेकंड और जो भी है। नाउ इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट the position of the functional group. So in this case the OH it is attached to the 4th carbon of the main chain, so the position जो है ये क्या है 4 है। so in this case heptane E position लिखा मैंने कौन सा 4 OL, ठीक है, 4 indicates the position of this OL means क्या OH ग्रुप। बट इसके अलावा है ना यहां पे ये CH3 और ये C2H5 के बारे में अपन ने नहीं लिखा है, ये पूरा नाम नहीं हुआ है, इसको हमने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ साइड चेन। सो इफ वन और मोर अल्काइल ग्रुप दे आर प्रेजेंट इन अ साइड चेन, देन आइडेंटिफाई फर्स्ट and then write down the name according to alphabetical order by mentioning their position, correct। अब यहाँ पे ये जो एक ग्रुप है दिस इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप तो तीसरे कार्बन को अटैच है और मिथाइल ग्रुप पर 5th कार्बन को अटैच है। सो इट्स नेम इज क्या होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल heptane, correct, E replaced by mentioning the position of functional group means क्या 4 OL, ठीक है, 4 OL। it is a IPC name of this compound, ठीक है। उसके बाद में अपन बाकी के एग्जांपल पे लेते हैं CS3OH, ठीक है, एक कार्बन वाली चेन है मींस एक कार्बन है, एक कार्बन मींस मिथ, ओके, OL मिथेनॉल, CH3 CH2OH, नाउ इथेनॉल। यहाँ पे इसके कोई आइसोमर्स तैयार नहीं हो रहे इसलिए पोजीशन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी पहला है, इधर से भी गए तो पहला है, इसलिए यहाँ पे नंबर इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज ऑलवेज 1, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। नाउ CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में ये जो है ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, तो पोजीशन यहाँ पे मेंशन अपने को करना होगा। OH ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है इसलिए प्रोपेन, ठीक है, 1 OL, CH3 CH3 इन दिस केस प्रोपेनॉल है बट दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे OH ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है तो यहाँ सेकंड कार्बन को अटैच है इसलिए पोजीशन को मेंशन करना होगा, तो अपन लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल, ठीक। बाकी के ले लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, कितने कार्बन हैं 4 कार्बन हैं। OH ये अटैच है फर्स्ट कार्बन को, सो इट्स नेम इज IPC नेम इज ब्यूटेन, बट 1 OL butanol, CH3
CH2OH, करेक्ट, OH। अब यहां पे OH फर्स्ट कार्बन को है, यहां पे भी फर्स्ट कार्बन को है, ये एक में के पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। कौन से हैं ये आपको याद करना है। बट इन दिस केस वन ऑफ द कार्बन इट इज प्रेजेंट इन अ साइड चेन, ओके, देन इट्स नेम इज 1,2,2-मिथाइल चेन 3 कार्बन की, इसलिए प्रोपेन, ओके, बट 1 OL CH3 CHOH CH2 CH3 कंपेयर करो, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, बट फर्क क्या है, कार्बन का जो फ्रेमवर्क है वो सलीका है, इसमें यहां पे अलग था, है ना, ये अलग था, बट यहाँ कार्बन का जो फ्रेमवर्क है, स्केलेटन जो है वो सलीका है, ओनली अटैचमेंट इज डिफरेंट। तो ये एक में के पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। यहाँ OH, अब नंबरिंग कहां से दोगे, यहां से दोगे 1 2, क्योंकि 1 2 3 आ रहा है, तो ऐसे एंड से नंबरिंग करना है, जिस कार्बन को OH अटैच है उसको कम से कम नंबर आए, सो 2, और 4 कार्बन मींस पैरेंट अल्केन हो गया, ब्यूटेन second position, so 2-butanol means butane 2-ol, correct, CH3C CH3 ठीक है। इसका कॉमन नेम समझो अपन ने लेते हैं, जब भी लिए नहीं तो OH अटैच टू दी टर्शियरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन दूसरे 3 कार्बन को अटैच्ड है, सो इट्स नेचर इज टर्शियरी, सो इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि कॉमन नेम लिखते समय सारे कार्बन को अपने को काउंट करना है। बट व्हाइल राइटिंग द IUPAC सिलेक्ट द कंटीन्यूअस चेन, अब ये अपन ने सिलेक्ट किया तो नंबरिंग इसको 2 आएगा, है ना, तो इट्स नेम इज 2-मिथाइल, पेरेंट चेन कौन सा है, 3 कार्बन का मींस प्रोपेन, और पोजीशन जो है वो 2OL, सो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल, और काफी सारे एग्जांपल्स अपन यहां पे देख सकते हैं। आपको बाकी चीजें पढ़ने के पहले कम से कम अल्कोहल को पहचानते आना चाहिए। हमें नाम लिखना ही नहीं आता तो हम क्या मेथड्स या केमिकल रिएक्शंस पढ़ सके। तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर फोकस करो कि भाई अल्कोहल के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। और सबसे सिंपल वे तो आईपीसी नेम है, क्योंकि वो इजी जाता है अपने को, किसी का भी अपन नाम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी भी अल्कोहल का हम कॉमन नेम नहीं लिख सकते। वो सिर्फ सिंपल जो अल्कोहल्स होते हैं उसके तक ही सफिशिएंट है, उसके बाद में अपन उसको नहीं लिख पाते हैं। तो इसी के लिए फिर इसके लिए रूल बनाए गए और उस रूल्स के अनुसार अपन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस यहाँ पे अपन बात करते हैं तो अल्कोहल का नाम अपन वो रूल को अप्लाई करते हुए लिख सकते हैं, इसलिए सिंपल वे होता है। अपन अब डायहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, CH2OH और CH2OH, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम अपन समझो देखते हैं, तो कॉमन नेम आपको मैंने बताया था। कॉमन नेम क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन पढ़ते समय अपन ने इसको डिस्कस किए थे। सो इट इज इथाइलिन, करेक्ट, इट इज इथाइलिन C2H4 है, H5 नहीं है। H5 होता तो वो इथाइल होता, मीन्स ये जो हाइड्रोकार्बन है इट कंटेन 2 हाइड्रोजन लेस देन दैट ऑफ द इथेन, मीन्स इसका करस्पॉन्डिंग जो अल्कीन है वो कौन सा है, इथीन। सो मीन्स कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन
ग्लाइकॉल है, दो है करके ग्लाइकॉल, इट इज अ ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब इसी का आईयूपीएसी नेम लिखना है, इसका कॉमन नेम है ये। तो आईयूपीएसी नेम जो होगा, यहां पे आप सिलेक्ट करो चेन, कितने कार्बन के, 2 कार्बन की चेन सिलेक्ट की अपन ने। तो हम लिखेंगे इथेन, एक जब भी मैंने रूल लिखवा के दिया कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल समझो है, तो यहां पे एंडिंग का ई जो है इसको रिटेन रखना है, और उसके बाद फिर जो है ये OH जो सॉरी मींस OH ग्रुप जो है इसको इंडिकेट करता है बाय यूजिंग दी सफिक्स OL, और इसके जो नंबर है ये नंबर लिखना है बिफोर दी OL, बिफोर दी सफिक्स, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स डाई ट्राई जो है इट इज रिटन बिफोर दी OL के पहले हमें इसको लिखना है, मींस इथेन। और पोजीशन जो है अल्कोहलिक ग्रुप की मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ये हमें इंडिकेट करना है प्रॉपर नंबर से। तो यहां पे हो जाएगा इथेन, अब ये 1 है तो ये 2 है, इसलिए 1 2, ठीक है। अब कितना है 2, सो प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं डाइऑल, करेक्ट, डाइऑल, समझ में आ गया। वर्ड रूट हो गया इथ, एन ये इंडिकेट कर रहा है सिंगल बॉन्डिंग, ई अपन ने इसलिए रिटेन किया क्योंकि पॉलीहाइड्रिक है, 1 2 आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, उसका पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, डाई यहां नंबर ऑफ OH ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, और OL है तो OH को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, डाइऑल। उसी तरीके से CS2 CH, CS2OH, OH और OH ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में अपन ने इसको बोला था ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरीन और दी ग्लिसरॉल। अब यहां पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला अल्किन कौन सा है, मींस अल्काइलिन कौन सा है, सो प्रोपाइलिन। सो इट्स सॉरी कॉमन नेम जो होगा ये होगा प्रोपाइलिन, क्या, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। और इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा ये 3 है, यानी प्रोपेन, ई को जैसी के वैसे रखना है, फिर 1 2 3, 1 2 3, कितने हैं 3 है, इसलिए प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन ट्राई ऑल जस्ट बिफोर दी OL, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल, ये हो गए आईयूपीएसी नेम। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा, वीडियो जो होगा उसमें अपन मिलेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज को लेते हुए, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को लेते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।